Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. We are reading Shrimad Bhagavatam, 3rd canto, 5th chapter, titled as Vidurji Talks with Maitreya Rishi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatim Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtake. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. So we are reading Shrimad Bhagavatam, 3rd canto, 5th chapter, 5th shloka. You can repeat after me. Karoti karmani krutavataro yani atma tantro bhagvams trayadhishaha yatha sasarga jagra idam niriha samstapya vrittim jagato viddhate. I'll recite the whole shloka for benefit of all of us. Karoti karmani krutavataro yani atma tantro bhagvam strayadisha yatha sasajagra idam niriham sanstapya vrittim jagato viddhate. Translation. O great sage, kindly narrate how the Supreme Personality of Godhead, who is the independent, desireless Lord of the three worlds, and the controller of all energies, accepts incarnations and creates the cosmic manifestation with perfectly arranged regulative principles for its maintenance. So, Vidurji, who is a great devotee of Lord, and he is always inquisitive about knowing about Lord Krishna. भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. साधारणतः मनुष्य उसकी रुचि रहती है कि कैसे मैं भौतिक चीजें पा सकूं. Normally people inquire about how to earn more money, how to get a better house, better facilities, how can I get better sense enjoyment. However, the devotees of the Lord, they are inquisitive about who is God, who is the creator, how this whole world is created, how Krishna maintains all this universe, how do people live and die, and what happens after the death. What is my ultimate destiny? What is my ultimate purpose of human life? Why do I have to suffer? Why do people grow old and die? Is there any way to stop the death? Is there any way to stop disease? If God is really there, then why do bad things are going around the world? So these are the questions by devotees. Devotees who are inquisitive, they want to know about God and God's creation, while the materialists or the people who are not interested in spirituality, they are more interested in how they can have more enjoyment, sense enjoyment. There is nothing wrong in enjoyment actually, but enjoying independent of Krishna is a problem. If I come to your house and I use the facility in your house without your permission, would you be happy? You will not be happy. If somebody enters our house and just started randomly destroying the things, we will be very disappointed.
We are in the house of Krishna. This whole world belongs to Krishna. Did you create anything? We didn't create anything. This ये घर दूसरे का है. ये जो पृथ्वी है, ये हमारी नहीं है, भगवान ने बनाई है. तो ये घर भगवान का है. तो भगवान के घर में भगवान की परमिशन के बिना अगर हम कोई भोग करने लगेंगे सब चीज़ों का, तो ये कोई ठीक बात नहीं है. There is nothing wrong in enjoyment, but having enjoyment independent of Krishna is a problem. There is nothing wrong in eating food, but eating food without offering to Krishna is a problem. Because the food belongs to Krishna and we have to take his blessing before we take the food. There is nothing wrong in dancing, but dancing for Krishna is good. There is nothing wrong in singing. Singing is also an enjoyment, right? We sing, right? We just sang bhajan. But singing glories of Lord Krishna is blissful. There is nothing wrong in talking, but talking, gossiping, politics, sports, or movie stars, that is a problem. Because it diverts your mind from spirituality to material. More we talk about material things, our desire for materialistic attitude of life increases, and material things are a problem actually. In the previous shloka, Viduji was expressing to Maitreya Rishi that people are working very hard. He says, Sukhaya karmani karoti loko naita sukhavanya duparam va. Viduji says that everyone in the world is working very hard. You work very hard, right? We all work hard to become happy. And more one try hard to overcome material distress by finding materialistic methods of enjoyment, more one become unhappy actually. And we learned by one of the example that we created these motor vehicles, cars, so that we can travel easily. But the car itself is a problem because of the pollution. We wanted to drill the ocean so that we can get more oil for the cars. But that drilling the ocean is also environmental hazard. The car itself, the pollution by the car is depleting the ozone layer, and the factories are depleting the ozone layer, and ultraviolet radiations are traveling through the sun, causing skin cancers now more and more. We created the artificial chemicals to preserve food substances. हाँ, फूड ज़्यादा टिके इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मार्केट में सब अभी ग्रॉसरी जो मिलती है उसमें सब में केमिकल आता है क्योंकि फूड ज़्यादा टिके. लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है? कैंसर. लॉट्स ऑफ कैंसर्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इन द फूड. तो मनुष्य जितना भौतिक चीज़ों से प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न करता है, नया प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. पहले के ज़माने में खेती में अनाज उगाते थे और खाते थे, तो कोई कैंसर का प्रॉब्लम नहीं था, है ना. अभी आजकल रेस्टोरेंट में जाते हैं लोग या फिर, तो जितना हम यहाँ पे वही विदुर जी कह रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तचै सुखवान्य दुपारम. Vidur ji saying that everyone in this world is engaged in the fruitive activities to attain happiness, but one finds neither satisfaction nor mitigation of distress. जितना भी लोग भौतिक चीज़ों का उपयोग करके सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, उतना ही दुख बढ़ रहा है, सुख कम होने के बदले, है ना. इसलिए यहाँ पे विदुर जी कहते हैं मैत्रेय ऋषि को कि हे मैत्रेय ऋषि, हमें ऐसा कुछ बताइए कि हमारे दुख दूर हो जाए. तो दुख दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान की भक्ति. क्योंकि हम जो है, हम सब आत्मा है ना, वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स. और आत्मा किसका पार्ट है? परमात्मा का. हाँ, आत्मा कहाँ से आती है? परमात्मा से आती है. तो हमारे परम पिता कौन है? परमात्मा.
देखिए, बच्चा जब पिताजी से या माता से दूर हो जाता है तो रोता है, लेकिन वही बच्चा जब माता पिता को मिलता है तो वो आनंदित हो जाता है। वैसे ही आत्मा जब परमात्मा से दूर हो जाती है तो उसे दुख होता है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है, उसकी सेवा करने लगती है, तो उसको आनंद आता है। इसलिए विदुर जी यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि भगवान के बारे में जितना हम जानेंगे उतना आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जैसे हमने अभी जप किया, जब हम जप करते हैं तो एक जगह बैठ के शांति से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम स्मरण करते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। हाँ, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। When we are chanting this mantra, actually we are connecting with Paramatma within our heart. इसके लिए हम जप करते हैं। तो जब हम जप करें, जब हम भगवान के नाम का स्मरण करें, जब भगवान के बारे में पढ़ें, जैसे श्रीमद् भागवतम है, तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? बड़े उत्साह से पढ़ना चाहिए। जैसे हम खाना खाते वक्त उत्साह रखते हैं, है ना? खाने खाते वक्त हम सो जाते हैं कभी, खाना खा रहे तो आप ऐसा हो जाए, खाना खा रहे सो रहे, ऐसा होता है नहीं? क्यों? क्योंकि उत्साह है ना, हमें खाना प्रसाद लेने के लिए हमें उत्साह है। वैसे ही भगवान के नाम स्मरण करते वक्त हमें सोना नहीं चाहिए, हमें जागते रहना, उत्साहपूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। इसलिए एक साथ जैसे कि आप 2 घंटा नहीं बैठ सकते, तो चलो आधा घंटा बैठने का प्रयत्न करना है हमें। जैसे हम 7:30 से 8, फिर आप दोपहर को एक आधा घंटा बैठिए, फिर शाम को एक आधा घंटा, फिर रात को सोने के पहले आधा घंटा, ऐसे आधा आधा घंटा 4 बार किया, आपका तो 16 राउंड हो जाएगा। तो हमें करना है, आज एक जगह पे आधा घंटा बैठे रहना है और भगवान के नाम का स्मरण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जब हम जप करें तो भी मन हमारा थोड़ा भटकता रहता है, इसलिए यहाँ पे जो मंत्र लिखा है वो मंत्र पढ़ते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। फिर कभी भगवान के मूर्ति का दर्शन करना है। भगवान, हमारा मन कैसे है कि यहाँ पे बैठ के जप करते हैं तो भटकने का चांस कम है। जब हम बाहर जप करते हैं तो भटकते रहता है इधर उधर उधर। इसलिए जितना हो सके हम भगवान के सामने बैठ के जप करना है। तो यहाँ पे विदुर जी मैत्री ऋषि को पूछ रहे हैं कि आप हमें भगवान के बारे में बताइए, भगवान की ये जो क्रिएशन है, ये दुनिया बनाई है कैसे, उसके बारे में बताइए। भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में बताइए। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। वैसे तो प्रोमिनेंट हम दशावतार को जानते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, भगवान श्री रामचंद्र, बलराम जी, बुद्ध और आने वाले कल के अवतार। लेकिन वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं। तो कहते हैं कि वो सभी अवतार के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। प्लीज टेल मी अबाउट द इनकारनेशंस, एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट द क्रिएशन ऑफ द होल वर्ल्ड, की ये पृथ्वी की रचना कैसे हुई, कैसे हुआ ये सब। प्रभुपाद जी पढ़ में समझा रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा इज द original personality of Godhead, from whom 3 creative incarnations, namely Purusha avatars, Karanodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu and Kshirodakshai Vishnu expands। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो भगवान कृष्ण है ये है आदि पुरुष, और भगवान कृष्ण से क्या आता है? तो 3 विष्णु आते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं और क्षीरोदक्षाई। तो ये कारणोदक्षाई विष्णु है, इनको महाविष्णु भी कहा जाता है। फिर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु और फिर आते हैं क्षीरोदक्षाई। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो हमारे हृदय में बसे हुए परमात्मा है। तो देखिए, भगवान कृष्ण, उनमें से कौन आए? 1, 2 और 3। कौन से? विष्णु, 3 प्रकार के विष्णु। पहले विष्णु का नाम क्या है? कारणोदक्षाई विष्णु। कारण यानी कारणों के कारण, कारण यानी जो रीजन। तो एक ओशन है कारणोदक्षाई ओशन, एक समुद्र है, उसका नाम है कारणोदक्षाई ओशन। उसके ऊपर जो विष्णु है उनका नाम क्या है? कारणोदक्षाई विष्णु। समझ में आ रहा है?
फिर कारणोदक्षाय विष्णु से और एक विष्णु आते हैं, उनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। ये गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सेस हैं। ये कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर से अनंत 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 यूनिवर्सेस तैयार होते हैं। हाँ, जैसे हमारे छिद्र, स्किन के छिद्र है, उसमें से हमें पसीना निकलता है ना, और पसीने में बहुत सारा पानी निकलता है। वैसे ही कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर से अनेक यूनिवर्सों का, विश्व का निर्माण होता है। जैसे हमारा एक ये विश्व है, इसमें गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी और बहुत सारी गैलेक्सी है ऐसे हमारे। और ये गैलेक्सी में क्या है, तो बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, बहुत सारा कुछ है। लेकिन ये एक छोटा सा अंडा है, इतनी सारी गैलेक्सियां मिलके वो एक यूनिवर्स में भगवान कारणोदक्षाई विष्णु एक्सपांड होते हैं और वहां जाके गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। समझ में आ रहा है? जैसे कारणोदक्षाई विष्णु, उनके शरीर से क्या हुआ, बहुत सारे गोले निकले। हाँ, और हर एक गोले में क्या हो गया, देखिए मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ। कारणोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु का फोटो में दिखाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत सुंदर फोटो है जिसमें आपको, हाँ ये देखिए, ये जो विष्णु है, आप दिख रहे हैं, ये विष्णु यहाँ पे भी। अभी हमारा जो फोटो है थोड़े कम दिख रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट स्लो हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो विष्णु है यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे विष्णु, हाँ ये दिख रहे हैं, ये है कारणोदक्षाई विष्णु। और ओशन है, उनके शरीर से क्या हो रहा है, अनेक, देखिए अनेक ओशन निकल रहे हैं, अनेक यूनिवर्स निकल रहे हैं ना यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे है ये, हाँ देखा, उनके शरीर से अनेक गोले निकल रहे हैं। ये गोले क्या है, ये हर एक यूनिवर्स है, और हर एक यूनिवर्स में भगवान यहाँ पे दिख रहा है अंदर। हाँ, अभी मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। तो हर एक यूनिवर्स में देखो, कारणोदक्षाई विष्णु ये एंटर हो गए हर एक यूनिवर्स में, देखा। तो ये है गर्भोदक्षाई विष्णु। समझ में आ रहा है? तो ये जो ओशन है, इसको कारणोदक्ष ओशन कहा जाता है, और यहाँ पे जो ओशन है ये है गर्भोदक्ष ओशन। तो गर्भोदक ओशन में भगवान विष्णु ये अपने, ये देखिए ये गर्भोदक ओशन, ये यहाँ पे आ गया। हाँ, तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु दिख रहा है यहाँ पे, और भगवान विष्णु कहाँ पे है, शेष नाग के ऊपर है। और ये गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकलते हैं एक कमल, और उसके ऊपर है भगवान ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी के शरीर से अनेक देवी देवताओं का या अनेक जीवों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये जो है एक गोला है, ये गर्भोदक ओशन, गर्भोदक ओशन में भगवान विष्णु और उनकी नाभि से निकला ये कमल, और यहाँ पे है भगवान खुद, सॉरी ब्रह्मा जी खुद, और ब्रह्मा जी में से अनंत देवी देवता जीव सबका निर्माण हो गया। और ये जो कमल है, कमल की नाभि, ये जो दांडी है, क्या स्टेम बोलते हैं उसको, उसमें 14 लोक है। देखो यहाँ पे आपको देखेंगे, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, ये ऊपर के लोक हो गए। फिर उसके नीचे के लोक हो गए। यहाँ पे देखो, दिख रहे हैं ये नाम ठीक से। भूलोक पृथ्वी बीच में है, उसके ऊपर है भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और नीचे आते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। दिख रहा है? हाँ? तो ये जो है ये यहाँ पे आ गया। देखिए भगवान विष्णु, ये गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से असंख्य देवी देवता, और यहाँ पे 14 लोक, 14 लोक में भी अनंत जीव जंतु, और हर एक जीव जंतु में भगवान प्रवेश करते हैं। कैसे?
परमात्मा के स्वरूप में। ख्याल में आ गया सब आपको? ये हिस्सा कोर्स नहीं है, ख्याल में आ गया? ये हिस्सा वो नहीं है भागवत का। अभी मैंने समझाया प्रभु जी। हाँ, तो पहले भगवान विष्णु, महाविष्णु या कारणोदक्षय विष्णु, उनके छिद्र से क्या निकले? अनंत अनंत यूनिवर्सेस, गोले निकले। हर एक यूनिवर्स में भगवान कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में एक्सपांड हो गए। हाँ, फिर उसमें से सृष्टि का निर्माण हुआ, जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। उसमें भगवान, हर एक जीव जंतु में भगवान प्रवेश किया। कैसे? शिरोदक्षाई रूप के, हाँ, विष्णु के रूप में। The whole material creation is conducted by three Purushas and in the successive stages under the external energy of the Lord, and thus material nature is controlled by Him. Thinking material nature to be independent is like seeking milk from nipple-like bags on the neck of a goat. तो कहते हैं कि भगवान ने ये सब रचना की है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो अपने आप ही तैयार हो गया है, भगवान ने कुछ तैयार नहीं किया है। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे आप कोई बकरी है, उसके गोट में नेक में एक बैग लगा दो तो उसमें थोड़ी दूध निकलेगा, वो तो दिखती है बैग, तो आंचल में से दूध निकलेगा। वैसे ही भगवान के द्वारा ही सबका निर्माण होता है। The Lord is independent and desireless. He does not create material world for his own satisfaction, as we create our own household affairs to fulfill our material desires. Actually, the material world is created for the illusory enjoyment of the conditioned souls who have been against the transcendental service of Lord since time immemorial. तो कहते हैं कि दुनिया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? तो वो एक गाना है, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई। तो भगवान ने क्यों दुनिया बनाई? तो हम जो जीव थे, हमारे जीव को भोग करने की बहुत इच्छा थी। तो हम सब पहले भगवान के धाम में थे, गोलोक वृंदावन धाम में। जब हम भगवान के धाम में बैठे थे तो भगवान को, तो सब लोग भगवान की सेवा करते हैं, असंख्य जीव वहाँ पे। तो जब हम भगवान की सेवा हमने देखी तो हमारे मन में एक इच्छा आ गई कि अरे, हम भगवान के जैसा आनंद कैसे ले सकते हैं। तो जब हमारी इच्छा ये हो गई कि हम भगवान के जैसा आनंद कैसे ले सकते हैं, तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपको आनंद लेना है तो आप के लिए मैं सेपरेट भोग करना है। आनंद यानी भोग करना है। इसमें दो चीजें हैं जीवन में, भोग और त्याग। भोग किसी को सिखाना नहीं पड़ता है ना। जैसे बच्चा जन्मता है तो उसको माँ के आंचल से दूध कैसे पीना वो सिखाना पड़ता है। छोटा बच्चा है, जस्ट जन्मा है, एक दिन का नहीं हुआ, उसको मालूम है दूध कहाँ मिलेगा, है ना। वो सीधा माँ के आंचल में जाता है, दूध पीना चालू करे, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, उसको मालूम है, नेचुरली मालूम है। बच्चों को हमें कुछ चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती है, क्योंकि अपने आप ही सीख जाते हैं, ये भगवान की रचना है। लेकिन त्याग है वो सिखाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि फास्टिंग है, एकादशी है, फास्टिंग करिए, आज सुबह जप करिए। बच्चों को या सभी जीवों को त्याग सिखाना पड़ता है, भोग सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही भोग सीख जाते लोग। इसलिए हमें भोग करने की इच्छा थी, तो फिर हम, भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपको भोग करना है तो भगवान का धाम, ये तो सेवा का धाम है, यहाँ पे भोग की जगह नहीं है। अगर भगवान के धाम में हमने भोग किया तो भगवान हमें धाम से बाहर निकाल देंगे। हाँ? इसलिए भगवान ने हमें धाम से बाहर निकाल दिया कि चलो आपको भोग करना है ना, भौतिक जगत में चले जाओ, यहाँ पे आपकी जगह नहीं है। इसलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बना दिया है। But the material universes are full in themselves. There is no scarcity for maintenance in the material world. Because of their poor fund of knowledge, the materialists are disturbed when there is an abrupt increase of population of the earth. Whenever there is a living being on the earth, however, if sustenance is immediately arranged by the Lord. देखिए, ये भी बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि जैसे जीवों का निर्माण होता है, असंख्य जीव है यहाँ पे, और हर एक के लिए भगवान ने खाना बना के रखा है। ऐसा हमें कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि चींटी के लिए भी छोटा सा खाना, और हाथी के लिए भी जंगल में। हाथी कभी काम करता है? हाथी जॉब नहीं करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खाना हाथी को ही मिलता है ना, क्या नहीं?
तो हम बहुत ज़्यादा खाना खाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भगवान ने यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान ने सबका इंतजाम करके रखा है, किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. Other living, the other species of living entities who far outnumber human society are never disturbed for maintenance. They are never seen dying of the starvation. ये भी है, हाथी को कभी आपने भूखा मरता हुआ नहीं देखा रहेगा, क्योंकि उसका इंतजाम भगवान ने कर दिया. प्रॉब्लम है मनुष्य का, मनुष्य में ही भूखमरी देखी जाती है. क्यों? क्योंकि हम बड़ा संचयन करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं. जो गरीब है उसको कुछ नहीं मिलता है, और जिसके पास है वो जमा करते रहता है, जमा करते रहता है. बीमार भी होती है. तो ये जमा करने की प्रवृत्ति अगर हमने छोड़ दी तो सबको खाना मिलेगा. It is only human society that is disturbed about the food situation, and to cover up the real fact of administrative mismanagement, takes the shelter in plea that the population is excessively increasing. जब खाना कम हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है. जैसे इंडिया में अभी 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गया, तो कहते हैं इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे गरीबी है. ऐसा नहीं है. पॉपुलेशन तो बहुत सारे सभी जगह है, खाने की व्यवस्था भी भगवान ने की है, लेकिन हम जितना मिसमैच है सोसाइटी में, जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ नहीं. जब सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो फिर खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. If there is any scarcity in the world, it is the scarcity of God consciousness. Otherwise, by the grace of Lord, there is no scarcity of anything. वो कहते हैं ना, ईशोपनिषद में पहला श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यच्किंत्या जगत्या जगत तेना त्यक्तेना भुंजिता न पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णाश्च पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. तो भगवान पूर्ण है, उन्होंने सब कुछ पूर्ण अरेंजमेंट करके रखी है. लेकिन हम जो है कि वी डोंट बिलीव इन कृष्णा, इसलिए हम सब कुछ सोचते हैं मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, तो हम संभाल के रखते हैं उसको. लेकिन बांटना चाहिए. जैसे आप एक राइस का बैग है, यहाँ से राइस बैग आप वहाँ चौक में रख दो इंटरसेक्शन पे, तो चींटियाँ बर्ड्स आएंगे सब, और एक एक दो दो दाना लेके चले जाएंगे. लेकिन कोई मनुष्य आएगा तो पूरी बैग लेके चला जाएगा, वो बोलेगा मुझे बैग काम में आएगी पूरी. तो ये जो अक्यूमुलेटिंग टेंडेंसी है, इसलिए स्कैरसिटी बहुत है दुनिया में. तो जो है हमारे पास वो भगवान का है. सब भगवान की सेवा में अगर हमने यूज़ किया ठीक से, तो किसी को कोई कमी नहीं रहेगी. तो इसलिए दान दक्षिणा करना, डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है. हम जब भी जाएँ, यात्रा के स्थान पे जाएँ कभी, तो लोगों को देना चाहिए. ऐसा लेते लेते तो थक जाएंगे हम, है ना. देने की जितनी इच्छा रखेंगे तो अच्छी बात है. हर एक को कुछ ना कुछ ज़रूरत रहती है. अगर हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है तो उनको दे दो, और क्या. साथ में तो कोई लेके जाने वाला नहीं है ना. लेके जाओगे कुछ भी नहीं आएगा साथ में. भगवान की सेवा के छोड़ के कुछ भी काम साथ में नहीं आएगा. इसलिए पैसे का जितनी सेवा हो सके पैसे से. ठीक है, आपको थोड़े पैसे संभाल के रखने पड़ते हैं कभी इमरजेंसी के लिए, लेकिन कितना, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है. ऐसे इमरजेंसी आई तो भगवान आपके ध्यान रखेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हम विश्राम करेंगे, फिर कल वापस पढ़ेंगे.